وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب النهي باب النهي عن نشد الضالة في المسجد وما يقوله من سمع الناشد. قال حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو قال حدثنا ابن وهب عن حيوة عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي عبد الله مولى شداد بن هاد أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبنى لهذا. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ من سمع رجلا ینشدو، ناشادہ ینشدو، نصرہ سے نشد کے معنی ہوتے ہیں گمشدہ چیز کو تلاش کرنا، طلب کرنا، اور یہ انشدہ ینشدو انشاد باب فعال سے آتا ہے جس کا معنی شعر پڑھنا۔ جو شخص سنے کسی آدمی کو جو طلب کرے یا تلاش کرے گمشدہ چیز مسجد میں، تو چاہیے کہ کہے لا رد اللہ علیہ کا، یعنی بد دعا کرے کہ نہ لوٹائے اس چیز کو اللہ تعالیٰ تجھ پر، اس لیے کہ مسجدیں نہیں بنائی گئی ہیں اس کے لیے، یعنی مسجدوں کی تعمیر کا مقصد ہے ذکر اللہ، صلاۃ، عبادت الہی۔ گمشدہ چیز تلاش کرنے کے لیے مسجدیں نہیں ہیں۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مسجدیں گمشدہ چیزوں کی تلاش کے لیے، بیع و شراء کے لیے نہیں بنائی گئی ہیں۔ آگے کہتے ہیں کہ کوئی تحریر لکھ کر کے لگا دی جائے، ورقے میں، کاغذ میں، تختی میں لکھ کر کے لگا دی جائے۔ کہتے ہیں کہ اگر مسجد کی خارجی دیوار میں ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یعنی اندرونی دیوار میں نہیں ہونا چاہیے، یا مسجد کا جو باہری گیٹ ہے وہ اس گیٹ پر لگا دے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن مسجد کے اندر اگر لگائے، طلب کرنا، اعلان کرنا تو منع ہی ہے، لیکن تحریر لکھ کر کے لگا دے اور مسجد کے اندر لگائے، کہتے ہیں فلا ينبغي لأن هذا يشبه الکلام، کہنے کہ اندر لگانا مناسب نہیں ہے کیونکہ یہ کلام کے مشابہ ہو جاتا ہے اور یہ لوگوں کو مشغول کرنے والا ہے۔ اس لیے کہ جب ایک آدمی کسی تختی کے پاس یا ورقے کے پاس گیا دیکھنے کے لیے تو اس کو دیکھ کر کے دوسرا پہنچا، تیسرا پہنچا، اس طرح سے بھیڑ لگ سکتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اندر نہیں ہونا چاہیے۔ والذی یظہر لنا انہ لا یجوز، جو بات ہمارے لیے ظاہر ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اوراق کو لگا دینا لٹکا مانا ہے، البتہ خارجی دیوار پر ہو، مسجد کے باہری گیٹ پر ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بھی کہا کہ مساجد کے احکام میں سے یہ بھی ہے کہ اس میں نہ بیع ہو نہ شراء ہو، چاہے وہ تھوڑی چیز ہو یا زیادہ، یعنی بیع و شراء تھوڑی چیز کی ہو یا زیادہ چیز کی ہو، یہ سب جائز نہیں ہے۔ اور نشد الزوال بھی نہیں جائز ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کی صورت یہ ہے
کہ کوئی آدمی مسجد میں داخل ہو اور جا کر کے کہے یعنی اعلان کرے کہ میری فلاں چیز گم ہو گئی ہے، میری فلاں چیز گم ہو گئی ہے، تو کہتے ہیں فہذا حرام لا یجوز، وَإِنْ غَلَبَ عَلَى أَمْرِكَ أَنَّهُ سُرِقَ فِي الْمَسْجِدِ، اگرچہ غالب گمان ہو کہ آپ کا وہ سامان مسجد ہی میں چوری ہوا ہے تو بھی ایسا نہیں کر سکتے ہیں۔ اور کہتے ہیں لا تقل کیف اتوسل الی ھذا، آپ یہ نہ کہیے کہ میں کیسے پہنچ سکتا ہوں، یعنی میرا سامان کیسے مل سکتا ہے، اس کا راستہ بتا رہے ہیں، اجلس عند باب المسجد خارج المسجد وقل ضاع منی کذا، المہم ان المساجد یا اخوانی یجب ان تحرم، میرے بھائیوں مسجد کا احترام ضروری ہے اور یہ سب چیزیں احترام مسجد کے منافی اور اس کے خلاف ہیں۔ جی جیسے کہ ہمارے ادھر ابھی الیکشن کا ٹائم چل رہا ہے تو ہاں، پارٹی حضرات جو ہے مسجد میں آ کر جو ووٹ مانگتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ مسجد میں ووٹ مانگتے ہیں جی سر۔ اور آج کل کے ووٹ جانتے ہی ہیں کہ آج کل کے ووٹ کس قسم کے ہوتے ہیں، دھوکہ دھڑی کے والے، تو میرے خیال سے تو یہ بھی احترام مسجد کے خلاف ہے۔ یعنی کہہ رہے ہیں کہ مسجد میں اگر آپ کا غالب گمان ہو کہ سامان آپ کا مسجد ہی میں گم ہوا یا مسجد ہی میں چوری ہوئی ہے جی تو بھی آپ وہاں اعلان نہیں کر سکتے ہیں۔ تو آج کل مدنی حضرات بھی آتے ہیں، آج کل کے الیکشن کے بارے میں میرا دل تو نہیں مطمئن ہو رہا۔ شیخ کچھ لوگوں کا سامان گر جاتا ہے مسجد میں تو کچھ دوسرے لوگوں کو مل جاتا ہے، تو وہ لوگ اعلان کرتے ہیں مسجد کے اندر کہ جس کا سامان ہو وہ لے لے، تو یہ کیسا ہے شیخ، صحیح ہے؟ میرے خیال سے یہ بھی تو اسی میں آئے گا۔ ہاں یہ ہے کہ امام کے پاس یا مؤذن کے پاس رکھ دے آدمی، اور مسجد میں نہیں، جب امام صاحب یا مؤذن صاحب اپنے روم میں جائیں تو وہاں جا کر کے آدمی جس کا ہو وہ مل سکتا ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ پتہ کیسے لگے گا کہ امام صاحب کو انہوں نے دے دیا؟ نہیں، یہ مساجد میں اس کا اہتمام رہتا ہے کہ لوگ امام سے یا مؤذن سے رجوع کرتے ہیں، جیسے ایام حج وغیرہ میں بہت سے مکاتب ہوتے ہیں، بہت سی آفسیں بنی رہتی ہیں کہ اگر آپ کو کوئی سامان مل گیا، اس میں ہے نا کہ کیا نام ہے، حج کے دوران کسی کا کوئی سامان گم ہو گیا ہے تو وہی اٹھائے، دوسرا نہ اٹھائے، لیکن آپ کو مل گیا سامان اور آپ کو خطرہ ہے کہ وہ سامان ضائع ہو جائے گا، تو آپ نے لے جا کر کے اس آفس تک پہنچا دیا۔ اب جس کا گم ہوا ہے وہ آفس سے رجوع کرے گا، وہاں جا کر کے اپنی بات بتائے گا اور اپنی علامت بتائے گا، اپنا سامان بتائے گا، نوعیت بتائے گا، تو اگر ہوگا تو مل جائے گا۔ تو اس طرح سے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امام اگر کوئی نہیں گیا شیخ تو اگر نہیں گیا پہنچ ظاہر ہے کہ وہ امانت پڑی رہے گی۔ وہاں اگر امانت رکھی گئی ہے، اگر نہیں گیا تو امانت رکھی رہے گی۔ کسی وقت آدمی کے ذہن میں آئے گا کہ بھئی میں فلاں وقت گیا تھا مسجد میں نماز پڑھنے، چلو امام صاحب سے پوچھ ہی لیتے ہیں۔ اچھا، امام اور مؤذن میں بھی تال میل ہونا چاہیے کہ دونوں کو ایک دوسرے کے پاس رکھی ہوئی چیز کی خبر رہے، تاکہ اگر مؤذن سے پوچھے تو وہ بتا دے کہ ہاں امام صاحب کے پاس ہے، امام سے پوچھے تو وہ بتا دے کہ ہاں اس کے پاس ہے۔ ویسے بہتر تو رہے گا یہی کہ امام ہی کے پاس رہے، لیکن علم دونوں کو ہو، علم دونوں کو ہو، لیکن سامان وہ رہے امام کے پاس، اس لیے کہ مؤذن کے مقابل میں امام زیادہ معتمد ہوتا ہے۔ اب اعتماد کو بحال نہ رکھے، اعتماد شکنی کرے تو الگ بات ہے۔ چلو
शेख ये जैसे कि बच्चा बच्ची बाबू साहब शेख आगे पढ़िए। हाँ शेख जैसे कि ऐलान किया जाता है कि बच्चा बच्ची जब गायब हो जाता है तो मस्जिदों में ऐलान किया जाता है, तो ये कैसा है शेख? बेटा कोई नस्से सरीह तो नहीं है इसमें, लेकिन चूंकि ये इज्तिहादी बात है, मैंने रुजू भी नहीं किया है कि यहाँ जान का मसला है, बच्चे या बच्ची के जिया का मसला है, खास तौर से आजकल के हालात में, जबकि बच्चे और बच्चियों के चोर और उचक्के और बदमाश भी लगे रहते हैं, ले जा करके वो फरोख्त करते हैं या उनके आज़ाए रईसा को निकाल करके उसे ख़त्म कर देते हैं। तो ऐसी सूरत में अगर ऐलान किया जाए तो मेरे ख्याल से कोई हरज नहीं है, जान बचाने का मसला है यहाँ। अल्लाह आलम। शाहीन बाग में बराबर ऐलान होता रहता है। हाँ, इस बच्चों के मिलने आज़ाए होने का ना, जी बकरी भी बहुत घूम ही जाती है तो ऐलान करते हैं वहाँ पे। बकरी उकरी का मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए। लाइट उठा शेख, मतलब मस्जिद से ऐलान तैयब मस्जिद के अंदर आधार बनाने का भी ऐलान किया जाता और है। तहकीक कर लो, मैंने कहा ना कि ये मैं अपने इज्तिहाद से बता रहा हूँ, मैंने रुजू नहीं किया है। चलो बाबू साहब बाबू एक कमी और एक शक। नमाज में कभी भूल करके आदमी कोई चीज ज्यादा कर देता है, कभी भूल करके कम कर देता है, कभी भूल चूक हो जाती है, शक में पड़ जाता है कि पता नहीं मेरी 3 ही रकात हुई या 4 पूरी हो गई। सुजूदे सहव की मशरूइयत की हिकमत, सुजूदे सहव का हुक्म क्यों दिया शरीयत ने, उसकी हिकमत है इरगामुल लिश्शैतान व जबरुल लिन्नुक्सान व इरज़ाउल लिर्रहमान। यानी 3 मकसद है सुजूदे सहव का। एक तो शैतान को दलीलो रुसवा करना है, जो कमी या जाती या शक के जरिए बंदे की नमाज में खलल डाल रहा है। तो सजदे सह जब कर लेता है बंदा, उसकी तलाफी हो जाती है, उस कमी या जाती या शक की तलाफी हो जाती है। वो जबरुल लिन नुकसान, तो इससे जो है शैतान जलील रुसवा होता है। वह जबरुल लिन नुकसान, और अगर नमाज में के अंदर कोई कमी हो गई है तो उसकी तलाफी हो जाती है। और सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी हिकमत यह है कि अल्लाह ताला सजदे से खुश होता है, और शैतान सोचने लगता है कि यही सजदा जिसका बंदे को मुसलमान को हुक्म दिया गया वो अल्लाह को खुश कर ले जाता है, और उसी सजदे की वजह से मुझे जलीलो रुसवा होना पड़ा और हमेशा के लिए रादे दरगाह हो गया। सजदे सहव का हुक्म है। अल्लामा इब्न बाज रहमहुल्लाह कहते हैं कि सजदे सहव वाजिब है अगर तर्के वाजिब के सिलसिले में हो या फ़िले महजूर के सिलसिले में हो। यानी कोई वाजिब चीज नमाज में से छोड़ दी या कोई ममनू चीज थी नहीं करना था उसको कर लिया, तो ऐसी सूरत में जायज है। अब सजदे सहव पहले है सलाम से या सलाम के बाद है, इस सिलसिले में उलमा में बड़ा इख्तिलाफ है। कोई पहले कहता है, कोई बाद में कहता है, कोई कहता है कि फला सूरत हो तो पहले है, फला सूरत हो तो बाद में है। इस सिलसिले में शेख इब्न बाज रहमहुल्लाह कहते हैं कि ये सजदे सहव क़ब्ल सलाम भी जायज़ है और बाद सलाम भी जायज़ है, लेकिन क़ब्ल सलाम कह रहे हैं कि अफजल है। 2 सूरतों को, 2 हालतों को छोड़ के
कह रहे हैं कि क़ब्ल सलाम अफजल है। अब वो दो सूरतें या दो हालतें कौन सी हैं जिनमें क़ब्ल सलाम अफजल नहीं है? कहते हैं इज़ा सल्लमा अन नक्स रकअतिन औ अक्सर, अगर एक रकात या एक रकात से ज्यादा कम करके सलाम फेर दिया है तो क़ब्ल सलाम ना करे सजदा, बाद सलाम करे, यानी जो कमी है वो तो पूरी करेगा, कमी पूरी करके सलाम फेरे और सलाम के बाद सजदा सहव कर ले। और दूसरी हालत जो है, दूसरी हालत जिसमें कह रहे हैं क़ब्ल सलाम अफजल नहीं है, अफजल नहीं है इसका मतलब जायज है लेकिन अफजल नहीं है, ये उस सूरत में है जब आदमी ज़न्ने गालिब पर बिना करे, यानी शक हुआ नमाज के अंदर कि उसने कितनी रकात पढ़ी है। मिसाल के तौर पर 3 और 4 में अगर शुबहा हुआ, इसका मतलब कि असल शक 4 में है, 3 में नहीं है, 3 हुई है लेकिन शक हुआ कि चौथी भी हो गई है या नहीं, तो क्या करेगा? वो ज़न्ने गालिब पर बिना करेगा। और अगर 3 पर यकीन हो गया तो यकीन पर बिना करेगा, लेकिन अगर यकीन नहीं हो रहा है, शुबहा ही में पड़ा हुआ है, तो कह रहे हैं कि जब ज़न्ने गालिब पर बिना करेगा तो वो बाद सलाम सजदा करे, अफजल उसके हक में यही है। इसमें आ रहा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी सहव हुआ था, आपसे भी भूल हो गई थी और आपने सजदा किया, तो इसमें भी अल्लाह की तरफ से हिकमत थी। एक हिकमत तो ये थी कि इस बहाने उम्मत को नमाज के अंदर सहव, निसियान और भूल चूक का मसला मालूम हो जाए कि अगर ऐसी सूरत पेश आए तो आदमी को आपको रब और माबूद ना मानने लगे, इस वजह से अल्लाह ताला ने आपसे सहव सादिर कराया। और आगे हदीस में आएगा कि जब भूले आप और साहबे किराम ने आपको याद दिलाया तो आपने फरमाया था इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम अनसा कमा तनसौना, तुम्हारी तरह मैं भी इंसान हूं, मुझसे भी भूल चूक होती है, लिहाजा जब मुझसे भूल चूक हो जाए तो तुम मुझे याद दिला दो। तो ये भी मकसद था। हालांकि इस हिकमत और मसलहत के बावजूद आज भी कितने लोग हैं जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उलूहियत का दर्जा दे चुके हैं और कहते हैं कि अल्लाह के पलड़े में वहदत के सिवा क्या है, अल्लाह के पलड़े में वहदत के सिवा क्या है। और कैसे है जी, जो लेना है ले लेंगे मोहम्मद से, या मांगना है ले, हाँ जो लेना है ले लेंगे मोहम्मद से। कोई कहता है वही जो मुस्तवी अर्श था खुदा होकर, वही जो मुस्तवी अर्श था खुदा होकर उतर पड़ा है मदीने में मुस्तफ़ा होकर। तो इन सारी सूरतों के बावजूद लोगों ने आपके शान में ताज़ीम के नाम पर इतना मुबालगा किया कि उलूहियत के दर्जे तक पहुंचा दिया। सनद के अंदर एक लतीफ़ा है, वो रिवायत ताबी अनित ताबी है। इब्न शहाब ज़ुहरी मशहूर ताबी हैं और अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान जो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु के शागिर्द हैं वो भी मशहूर ताबी हैं। तो ये ताबी की रिवायत ताबी से है। हदीस में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक तुम में से कोई एक जब खड़ा होता है नमाज पढ़ने के लिए या नमाज पढ़ता है तो आता है उसके पास शैतान, फल्लाबासा अलैहि, लाबासा यल्बिसु ये दरबा से है जिसके माने मुश्तबह करना,
फलबसा अलैहि, तो उस पर मुश्तबह कर देता है मामले को, नमाज को। और यही समिया से आएगा, लाबेसा यलबसु लिबासन, लिबास पहनना, कपड़ा पहनना। यहां तक कि नहीं जानता है वो कि कम सल्ला, उसने कितनी रकात पढ़ी। तो जब आदमी ये सूरत पाए, जब तुम में से कोई ये सूरत पाए, तो चाहिए कि 2 सजदे करे इस हाल में कि वो बैठा हुआ हो। अब वो सजदे सलाम से पहले करे कि सलाम के बाद करे, इसकी सराहत इसमें नहीं है, लेकिन और रिवायतें आगे आएंगी, उनमें सराहत है कि सलाम से पहले करे, किसी में है कि सलाम के बाद करे। ये अमर नाकिद वाला छोड़ करके मोहम्मद बिन मुसन्ना वाला पढ़िए। قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي بالأذان أدبر الشيطان له زرات حتى لا يسمع الأذان فإذا قضي الأذان أقبل فإذا ثوب بها أدبر فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى فإذا لم يدري أحدكم كم صلى فليسجد سجدتين وهو جالس. इज़ा नूदिया बिल अज़ान, जब पुकारा जाता है अजान के साथ, यानी अजान दी जाती है, तो शैतान भागता है। लहू ज़ुरातुन, ज़ुरात कहते हैं जोर से हवा खारिज करने को। तो शैतान भागता है, उसके लिए ज़ुरात होती है, यानी जोर से हवा खारिज करता हुआ भागता है। यहां तक कि नहीं सुनता है अजान को, यानी इतनी दूर भाग जाता है कि अजान की आवाज वहां तक नहीं पहुंचती। और एक रिवायत में आता है कि जब अजान होती है तो शैतान भाग जाता है और कौन सी जगह का जिक्र आता है ना कि वहां पहुंच जाता है, वहां तक भाग जाता है। ज़ौरा या कोई और जगह है, भूल रहा हूं, याद है किसी को? ये वाला जानता हूँ कि जहाँ तक कानों में उसके अजान जाती है, जहाँ तक इतने दूर तक चला जाता है। नहीं, वो तो यही मफहूम है, तल्ला इस्माल अजाना। वो एक और रिवायत आती है, उस जगह का नाम मैं भूल रहा हूँ, कि अजान सुनता है तो फला जगह तक चला जाता है। वो ज़ौरा मकाम है या कोई और जगह है, याद नहीं आ रहा है। तो दोनों में बज़ाहिर तजाद होता है। तो उलमा ने ये तावील की है कि जहां मकान और जगह की तायीन है, तखसीस है कि फला जगह तक भाग जाता है, वो मदीना की अजान के लिए है। उसकी खुसूसियत है कि वहां की अजान और ज्यादा दूर तक जाती है आवाज। और ये हदीस और इसके हम्माना हदीसें जिनमें है कि इतनी दूर चला जाता है कि वहां अजान की आवाज नहीं सुनता, कि ये दूसरी मस्जिदों की अजान की खुसूसियत है। फैज़ा कुदियल अजान अकबला, तो जब अजान पूरी हो जाती है तो फिर वो आता है। फैज़ा सुव्विबा बिहा, फिर जब तस्वीब के माने हैं इकामत कहने के, तो जब इकामत कही जाती है फिर भागता है। जब इकामत पूरी होती है तो अकबला, तो फिर वो मुतवज्जे होता है। यख्तरो या यख्तिरो दोनों लुगत है, दोनों बाब है। खातारा यख्तरो या खातारा यख्तिरो, बैनल मरे व नफ्स ही, तो आता है और आदमी और उसके नफ्स के दरमियान हायल हो जाता है, यानी मुख्तलिफ किस्म के वसवसे उसके दिल में डालने लगता है। यकूल उज़कुर कदा,
وہ کہتا ہے یعنی اس کو تلقین کرتا ہے, یاد دلاتا ہے کہ فلاں کام یاد کر, فلاں بات یاد کر. لما لم یکن یذکرو, ان باتوں کے لیے جن کو وہ یاد نہیں رکھ رہا تھا, بھولا ہوا تھا, وہ سب چیزیں وہاں یاد دلاتا ہے. یہاں تک کہ ہو جاتا ہے آدمی اس طرح ہے کہ ان نافیہ ہے, ان یدری الا یدری, وہ نہیں جانتا, ہو جاتا ہے اس طرح کہ نہیں جانتا کہ اس نے کتنی رکعت پڑھی. تو جب آدمی تم میں سے کوئی نہ جان سکے کہ کتنی رکعت پڑھی, تو چاہیے کہ 2 سجدے کر لے اس حال میں کہ وہ بیٹھا ہوا ہو. چلو یہ بھی اسی معنی میں ہے. ہاں, زورات والی حدیث ہے, حرملہ بن یحییٰ والی, اس کے نیچے والی پڑھ لیجئے, اس میں ایک آدھ اضافہ ہے, یحییٰ بن یحییٰ. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينة قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم. اس میں بھی 2 تابعی ہیں, ابن شہاب زہری اور عبد الرحمن الاعرج, اور عبداللہ بن بحینہ مشہور صحابی ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھائیں, بعض نمازوں کی 2 رکعتیں پڑھائیں. ثم قام فلم یجلس, پھر کھڑے ہوئے اور بیٹھے نہیں, یعنی 2 رکعت پر بیٹھنا تھا, قعدہ کرنا تھا, تشہد پڑھنا تھا, لیکن کھڑے ہو گئے, بیٹھے نہیں. فقام الناس معہ, تو لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے. جب آپ نے اپنی نماز پوری کر لی, ونظرنا بمانا انتظرنا, اور ہم نے انتظار کیا آپ کے سلام پھیرنے کا, تو آپ نے اللہ اکبر کہا, پھر 2 سجدے کیے اس حال میں کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے. یہ سجدے کب کیے؟ قبل التسلیم, سلام پھیرنے سے پہلے. ثم سلم, پھر آپ نے سلام پھیرا. یہاں کمی ہوئی, قاعدہ اولا آپ بھول گئے, نہیں پڑھ سکے. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر پہلا تشہد آدمی 4 رکعت یا 3 رکعت والی نماز ہے, پہلا تشہد بھول گیا تو سجدہ سہو سے اس کی تلافی ہو جائے گی. اس کا مطلب کہ وہ واجب نہیں ہے, اگر چھوٹ گیا تو کوئی بات نہیں ہے, سجدہ سہو کر لے. چلو آگے. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث وحدثنا رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن أعرج عن عبد الله بن بحينة الأسدي حليف بني عبد المطلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. یہاں بھی ابن شہاب زہری اور اعرج ہیں. اعرج وہی جو پہلی سند میں تھے, عبد الرحمن الاعرج, اور عبداللہ بن بحینہ اسدی ہیں, اور بنو عبد المطلب کے یہ حلیف تھے. کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں کھڑے ہو گئے اس حال میں کہ آپ پر بیٹھنا ضروری تھا. اوپر والی روایت میں تھا رکعتین من بعد الصلوات, اور یہاں اس نماز کی صراحت ہے کہ ظہر کی نماز میں آپ کھڑے ہو گئے اور آپ پر بیٹھنا تھا. تو جب آپ یعنی بیٹھنا تھا لیکن بیٹھے نہیں, تو جب آپ نے اپنی نماز پوری کر لی تو 2 سجدے کیے آپ نے. ہر سجدے کے ساتھ آپ اللہ اکبر کہتے تھے, اور یہ سجدے آپ نے بیٹھے ہوئے کیے تھے, اور سلام سے پہلے کیے تھے آپ نے. وَسَجَدَهُمَ النَّاسُ مَعَهُ, اور یہ دونوں سجدے لوگوں نے آپ کے ساتھ کیے.
मकाना मा नसिया मिनल जुलूसे, जो बैठना भूल गए थे उसकी जगह पर सजदा किया, यानी उसके बदले में सजदा किया। जो बैठना भूल गए थे उसकी जगह पर यानी उसके बदले में सजदा किया। यहां भी कमी हो गई थी और आपने 2 सजदे सहव किए, और कमी क्या हुई थी, वही पहला तशहुद छूट गया था। शेख अगर तीसरी रकात तशहुद याद आ जाए तो बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे? अगर तीसरी रकात में याद आ जाए कि हम दूसरी रकात में नहीं बैठे हैं तो तीसरी रकात में बैठेंगे, उसके बाद सजदे सहव करेंगे या नहीं करेंगे? तीसरी रकात में याद आ गया यानी उठ रहा था आदमी, यही ना, तीसरी रकात के लिए उठ रहा था तो उसको जी। याद पड़ गया कि मुझे बैठना है। जी जी। उसकी 2 सूरत है। एक सूरत तो यह है कि वो बैठने से करीब हो, दूसरी सूरत यह है कि उठने से करीब हो, यानी आधा से कम उठा हो या आधा से ज्यादा उठा हो। तो अगर आधा से कम उठा है यानी बैठने से करीब है तो बैठ जाए, तशहुद पढ़े और फिर उसके बाद उठे और बाकी या 2 रकातें या 1 रकात जो बाकी है वो पूरी करे। तो ऐसी सूरत में सजदे सहव नहीं है। और अगर उठने से करीब हो गया है यानी ज्यादा उठ चुका है तो लौटे ना, याद पड़ गया कि मुझे बैठना था तो ज्यादा उठ चुका है तो उठ जाए वो, और बाद में फिर वही सजदे सहव कर लेगा, उसकी तलाफी हो जाएगी। चलो शेख, और तीसरी रकात में तशहुद करेंगे कि नहीं, ये पूछ रहे हैं। तीसरी रकात में दूसरी रकात में भूल गए आप, चौथी रकात में उठने से पहले करेंगे या नहीं करेंगे? यानी हम दूसरे में भूल गए फिर हाँ। अगले रकात में कर लें तशहुद, ऐसा हो सकता है नहीं क्या? नहीं 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 करना है। तीसरी रकात में बताया ना कि जब आपको तीसरी रकात के लिए उठ रहे थे और आधे से ज्यादा उठ गए और याद पड़ गया तो लौटना नहीं है, बल्कि अपनी नमाज पूरी कर लेनी है। यानी मगरिब की नमाज थी तो 1 रकात पूरी करके फिर तशहुद दुरूद पढ़िए और सजदा सहव कीजिए। और अगर 4 रकात थी, 4 रकात वाली थी तो आप तीसरी पर भी ना बैठिए और चौथी पूरी करके फिर बैठिए और तशहुद दुरूद पढ़िए और फिर सजदे सहव कीजिए। चलो सलाम फेरने से पहले सजदा सहव करेंगे कि सलाम फेरने के बाद? बताया ना कि उलमा की अलग अलग राय हैं, लेकिन अक्सर उलमा कहते हैं कि क़ब्ल सलाम भी जायज़ है, बाद सलाम भी जायज़ है। शेख इब्न बाज़ का खुलासा भी मैंने आपको बता दिया कि 2 हालतों को छोड़ करके वो कह रहे हैं क़ब्ल सलाम अफजल है, जायज़ दोनों है। चलो قال وحدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد وهو بن زيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينة الأزدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في الشفع الذي يريد أن يجلس في صلاته فمضى في صلاته فلما كان في آخر الصلاة سجد قبل أن يسلم ثم سلم. इसमें है अन अब्दुल्लाह इब्न मालिकिन, उसके बाद है इब्ने बुहैनता अल अज़दिये। तो इसके पहली वाली सनद में था अन अब्दुल्लाह इब्न बुहैनता, वो तो ठीक था, अब्दुल्लाह इब्न बुहैनता, और यहाँ है अन अब्दुल्लाह इब्न मालिकिन इब्ने बुहैनता। कुछ नाम ऐसे हैं जो माँ की निस्बत से मशहूर हो गए हैं। तो ये अब्दुल्ला बिन मालिक भी हैं और अब्दुल्ला बिन बुहैना भी हैं। ये कैसे? मालिक अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु के बाप हैं
और बुहैना अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हो की माँ हैं। तो किसी ने बाप की तरफ निस्बत करके अब्दुल्ला बिन मालिक कहा है, अन अब्दुल्लाह इब्न मालिकिन हद्दसनी अब्दुल्लाह इब्न मालिकिन, और किसी ने माँ की तरफ निस्बत की है, अन अब्दुल्लाह इब्न बुहैना कहा है। ये दोनों सही है। और कहीं कहीं बाप और माँ दोनों की निस्बत जिक्र की जाती है, जैसे यहां है। अगर दोनों की तरफ निस्बत जिक्र करेंगे तो अब्दुल्ला बिन मालिक के बाद जो इब्न आएगा वहां हमजा जाहिर करेंगे, वहां हमजा जाहिर करेंगे। इसका माना ये हो जाएगा जब हमजा जाहिर करेंगे कि ये इब्न जो आ रहा है ये मालिक की सिफत नहीं है बल्कि अब्दुल्ला की सिफत है। माना क्या होगा कि अब्दुल्ला बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हो से रिवायत है, बल्कि ये कहोगे कि अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हो से रिवायत है जो बेटे हैं मालिक के और बेटे हैं बुहैना के, यानी मालिक बाप के बेटे और बुहैना माँ के बेटे हैं। और अगर अलिफ ना जाहिर कीजिए, जैसे अब्दुल्ला बिन मालिक है वहां बगैर अलिफ के है, वैसे यहां लिख दें तो माना बदल जाएगा, गलत हो जाएगा। माना यह हो जाएगा कि अब्दुल्ला बेटे हैं मालिक के और मालिक बेटे हैं बुहैना के, जबकि मालिक शौहर हैं बुहैना के। तो ऐसे ही इस्माइल बिन उलैया भी हैं, इस्माइल बिन इब्राहिम इब्ने उलैया। तो कहीं खाली इब्ने उलैया उनको कहा जाता है, इस्माइल बिन उलैया, कहीं इस्माइल बिन इब्राहिम, और कहीं दोनों निस्बतें जिक्र की जाती हैं, तो वहां अलिफ को जाहिर करना जरूरी होगा। कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए फिश शफ़ई, शफ़ माने जुफ्त यानी 2 रकात, उस जुफ्त नमाज में जिसमें आप बैठने का इरादा करते थे, यानी ताक रकात, जुफ्त वाली रकात थी, 2 रकात थी, और उसमें आप बैठने का इरादा रखते थे, यानी बैठना था आपको। फमज़ा फी सलाती ही, तो गुजर गए आप अपनी नमाज में, यानी आगे बढ़ गए, बैठे नहीं। फलम्मा काना फी आखिर सलात, जब नमाज के आखिरी हिस्से में आप हुए तो आपने सलाम फेरने से पहले सजदा कर लिया, फिर सलाम फेर दिया। चलो एक सनद और पढ़ लो। قال وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن نبي سعيد الخدري رضي الله عنه। زید بن اسلم اور عطا بن یسار یہ دونوں تابعی ہیں، تو روایت التابعی یعنی تابعی ہے۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى 3 أم 4 فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى 5 شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما ل4 كانت ترغيبا للشيطان۔ یہ بھی روایت اسی کے ہم مانا ہے۔ اس میں کہہ رہے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی شک کرے اپنی نماز میں، پھر نہ جان سکے کہ اس نے کتنی رکعت پڑھی، 3 پڑھی یا 4 پڑھی، تو چاہیے کہ شک کو ڈال دے، یعنی جو مشکوک رکعت ہے اس کو کل عدم سمجھے، اور چاہیے کہ بنا کرے علی مستیقنا، اس رکعت پر جس پر اسے یقین ہو، پھر 2 سجدے کرے سلام پھیرنے سے پہلے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ ان کانا صلی 5، بس اگر اس نے 5 رکعت پڑھ لی ہے، یعنی جو مشکوک رکعت تھی اس کو کل عدم کر دیا اور 1 رکعت مزید پڑھی،
और वो हकीकत में 5 रकात हो गई, तो शफाना लहू सलातहू, ये सजदे जुफ्त कर देंगे उसके लिए उसकी नमाज को। सलातहू मफूल है, ये सजदे जुफ्त कर देंगे उसके लिए उसकी नमाज को। यानी जो 5 रकात बन गई, तो 2 सजदे किया तो 2 सजदे को अल्लाह ताला 1 रकात के कायम मकाम बना देगा, और 2 उसकी 4 रकात फर्द हो जाएगी और 2 रकात नफल का सवाब पाएगा। वइन काना सल्ला इतमामन ले अरबाइन, और अगर उसने 4 को पूरा करने के लिए पढ़ा है, यानी 1 रकात जो पढ़ी उससे चौथी पूरी हुई है, ये सजदे शैतान को रुसवा करने के लिए हो जाएंगे। तो इसमें ऐसा शक है जिसमें किसी पहलू को तरजीह हासिल नहीं हो रही है। तो मसलन 3 और 4 में जब शुबहा हो तो उसमें यकीन को ढूंढने की कोशिश करे, अपने ज़हन पर जोर डाले, उसको पता चला कि नहीं मेरी 4 पूरी हो गई है। तो जब यकीन हो गया कि 4 पूरी हो गई है, तो उस यकीन पर बिना करके वो सजदा कर लेगा। और अगर नहीं यकीन हो रहा है, यानी न 3 पर यकीन है न 4 पर यकीन है, वो शुबहे ही में पड़ा हुआ है, तब अकल्ले यकीन पर बिना करेगा। अकल्ले यकीन, तो जाहिर है कि 3 जो है ये अकल्ले यकीन, यानी 3 तो कतई है, असल शुबहा उसको चौथी में है, तो अकल्ले यकीन पर बिना करे। तो उसी को कहा है वलियबने अला मस्तयकना, बिना करे यकीन वाली रकात पर। घंटी लग गई होगी शायद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।